Hello students, I am Urmil Mengi. Today we will do the poem Leisure by W.H. Davis. Leisure mean free time, फुर्सत का टाइम जब हमारे पास काफ़ी टाइम हो. ये पोइम when this poem is written by W.H. Davis. इसके पीछे का कारण क्या है? He met with an accident and he lost his foot in that accident and he was hospitalized and he saw the beauty of nature from the hospital room window, and then he realized that nature is so beautiful, we should enjoy this, and how he have make our life so busy and useless. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? Poet says that our life is useless if this is full of worries, full of responsibilities, and we have no time to stand and to stare. Stare means look, to enjoy the beauty of nature. Means if we have no time to look at the beauty of nature, our life is useless. To stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. Beneath mean under and boughs mean branches of the tree. You have seen children, cows and sheep and other animals a long time stand under the shade of a tree, and they are very good because we have no time to enjoy the shade of a tree. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. To see the small creatures activity is very enjoyable if we have time, but when we woods mean jungle, when we cross near from the jungle, we are so busy we have no time to stay near the jungle to see the activities of small creature like squirrels who brought the nut from a tree and hide it in the grass. It is such a enjoyable activities, but we have make our life so busy and dull. We have never enjoyed such type of beauty of nature. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Streams mean river. Rivers full of stars mean क्या है? No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Night time you see skies full of stars and looks very beautiful. And in the broad daylight, stream means river seems like a star. Why? Because the stream water due to the sunlight shine, when the sunlight reflect on the water of the river, it look like a star. It looked like a star, and we have no time to enjoy the beauty of nature. When we cross from the river and the river is shining like a star, it is very beautiful, but our life is too busy and we have never enjoyed such type of beauty. No time to turn at beauty of glance and watch her feet how they can dance. In this couplet, the poet has personify this couplet. In this couplet, poet has personified the earth. He said that earth's beauty is like a beauty of girl. जैसे एक गर्ल की ब्यूटी ग्लैंस होता है देखना, एक सुंदर लड़की को देखना, उसकी ब्यूटी को देखना जैसे अच्छा लगता है. एंड वॉच हर फीट, और एक डांस करती हुई लड़की के जब फीट होते हैं, हाउ दे कैन डांस, कैसे उसकी फीट मूवमेंट और उसके फेस की जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हैं. एक डांसिंग गर्ल के फीट का जो मूवमेंट होती है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस एंड डांसिंग गर्ल के कैसे वो चेंज होते हैं. तो इसी तरह जो ब्यूटी है, अर्थ की ब्यूटी है, वो भी चेंज होती है. जैसे स्प्रिंग सीजन में कितने फ्लावर खिल जाते हैं और हर तरफ जो हरे भरे ट्री होते हैं, तो नेचर कितनी सुंदर लगती है. और रेनी सीजन में बारिश से सारे जो पहाड़ हैं कैसे धुल जाते हैं, नेचर कितनी क्लीन लगती है. और फिर विंटर सीजन में
सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आ जाती है, पहाड़ जो है बिल्कुल कवर हो जाते हैं वाइट वाइट बर्फ़ से। तो जैसे कहते एक डांसिंग गर्ल की ब्यूटी जो है फेस के उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, इसी तरह अर्थ की ब्यूटी भी सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस चेंज हुई ब्यूटी को हम देखें, उसको एंजॉय करें। नो टाइम, यहाँ पे जो इस कपलेट में देयर आर टोटल 7 कपलेट इन दिस पोएम। एंड इन दिस कपलेट जो पोइट ने पर्सोनीफाई किया है, मतलब अर्थ की ब्यूटी को एक गर्ल की तरह बताया। अभी अर्थ एक जैसे गर्ल सुंदर होती है, ऐसे अर्थ भी कैसे सुंदर लगती है और कैसे उसके भी एक्सप्रेशन सीजन टू सीजन बदलते रहते हैं। एंड नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। और जैसे वो डांसिंग गर्ल के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बिगेन आइज से शुरू होते हैं, फिर उसकी स्माइल इतनी एनरिच हो जाती है वे पूरे उसके। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन, उसके पूरे चेहरे पे उसकी जो स्माइल है फैल जाती है, उसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम वेट ही नहीं करते भी कैसे नेचर जो है अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट रंग बिखेरती है। कभी स्काई में रेनबो होता है, कभी कुछ होता है, कभी बर्फ़ होती है, तो कभी रिवर होती है। तो इस तरह नेचर जो है अलग अलग अपने रंग दिखाती है। जैसे एक डांसिंग गर्ल के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर हम कभी भी ऐसी ब्यूटी को एंजॉय नहीं करते। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। आवर लाइफ इज यूजलेस, पुअर मीन यूजलेस, if we always remain in busy and in responsibilities and cares, worry and hurry, and we have no time to stand and stare to look at the beauty of nature. Now see rhyming scheme. Beta, care and stare, they words are similar, and similar words, the last word of each line if they are similar, that is called rhyme scheme. अगर हम इसे ए का नेम देते हैं तो इसे भी ए का नेम देंगे, ए। एंड नेक्स्ट है बाओज काओज। देखो जो सिमिलर वर्ड है बाओ काओ, तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो बन जाएगी। इस लाइन को अगर हम बी का नाम दें, ए बी बी। पास ग्रास, सिमिलर वर्ड सी। डे लाइट नाइट, डी। ग्लैंस डांस, अगर हम इसे ई का नेम दें। एंड कैन बिगैन, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, कैन बिगैन। केयर एंड स्टेयर, ठीक है, ये पहले वाली लाइन का ही आ गया, केयर एंड स्टेयर। कैन बिगैन, तो सारी आपको देखो समझ आ गई। राइमिंग वर्ड है केयर, स्टेयर, बाउस काउस, पास ग्रास, डे लाइट नाइट, ग्लैंस डांस, कैन बिगैन, केयर स्टेयर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भी इस लाइन में नो टाइम टू टर्न आ ब्यूटीज ग्लैंस, यहाँ पे पोइटिक डिवाइस जो है पर्सोनीफाई यूज़ किया गया है, पर्सोनीफाई, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड एंड स्टेयर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो लेटर है उनकी आवाज़ साउंड जो है एस की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स मेटाफर हैं, और यहाँ पे लाइक लगाने से यहाँ पे सिमिली हो गया। और देयर आर अदर्स पोइटिक डिवाइस, हाँ यहाँ पे देखो ई की साउंड आ रही है, ई साउंड, यहाँ पे हर में भी ई साउंड आ रही है, ई साउंड आ रही है, ई साउंड आ रही है। और जब ये वाउल साउंड है, जब कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो एलिट्रेशन बोलते हैं, लेकिन जब वाउल साउंड आती है तो इसे एसोनेंस बोलते हैं, एसोनेंस। वाउल साउंड है, एसोनेंस आ रही है। बेटा द थीम ऑफ दिस पोइम इज दैट ए पर्सन शुड नॉट रन आफ्टर मनी एंड ही शुड नॉट बी मटीरियलिस्टिक। दुनिया को में जो लग्जरियस चीज़ें पाने के लिए उसे नहीं दौड़ना चाहिए,
उसको जो नेचर की ब्यूटी है उसको भी एंजॉय करना चाहिए। नेचर की ब्यूटी जो है हमारे स्ट्रेस को रिलीफ देती है, हमारी हरीज और वरीज को थोड़ा कम करती है, जो हमारे दिमाग पे बोझ होता है उनको कम करती है। हम लोग नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं साल में एक बार, जैसे समर वेकेशन में जाते हैं तो हिल्स में चले गए किसी और, पर हमें डेली अपने डेली रूटीन में हम अपने नेचर को एंजॉय करना चाहिए। हमारे पास आसपास नेचर इतनी, मतलब आसपास इतनी नेचर है, बिखरी पड़ी है, इतने अच्छे अच्छे सीन है जो हमें एंजॉय करना चाहिए। व्हाट डज द स्पीकर मिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम? स्पीकर मिस द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। व्हाट डू स्टार्स इन द स्ट्रीम लाइन्स रेफर टू? स्टार्स इन द स्ट्रीम रेफर्स टू द reflecting of the sunlight on the river, and it shine like the star. And list the pair of the rhyming word, already I have told you. and नेचर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नेचर में जैसे स्ट्रीम है, माउंटेन है, रिवर है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, स्टार्स हैं, स्काई, स्क्विल, ट्री, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। और सिटी लाइफ में क्या होता है? सिटी लाइफ में बेटा स्मोक है, बिल्डिंग है, ट्रैफिक है, कार, बिजी रोड है, पोल्यूशन है, नेचर तो होती नहीं है सिटी लाइफ में। कंजस्टेड रोड होते हैं, कंजस्टेड हाउस होते हैं, नेचर के तो स्काई वगैरह के तो दर्शन ही नहीं होते हैं। सो मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर।